میں نے ایک 40 سال بیوہ جو نرس تھی اس سے شادی کی تاکہ وہ میری ماں کا خیال رکھ سکے۔ شادی کی پہلی رات ماں کی طبیعت بگڑ گئی، لیکن اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور خود ماں کے ساتھ کمرہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو ماں نارمل تھی، لیکن بیوی سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور ماں بالکل ٹھیک ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ میں ایک دن کمرے میں چھپ گیا، لیکن میری جان نکل گئی جب میری بیوی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ماں اچانک۔ میرا نام یش ہے اور یہ میری زندگی میں ہونے والا سب سے انوکھا واقعہ ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی بدل گئی۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں ایک امیر آدمی تھا۔ میری ماں بستر پر پڑی تھی اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ان کے لیے میں کسی نرس وغیرہ دے آیا کرتا تھا تو وہ 2-3 دن بعد ہی بھاگ جاتی تھی، یہاں تک کہ میں ان کو بہت اچھی تنخواہ پر رکھتا تھا، پر وہ تنخواہ کے لیے بغیر ہی چلی جاتی تھیں۔ 1 مہینے سے زیادہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں گزارتا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ ضدی تھی، اس بات کا تو مجھے پتا تھا، لیکن بستر پر پڑے پڑے پتہ نہیں ان کو ایسا کیا کہتی تھی کہ وہ تو وہاں سے بھاگ جاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں مہینے کے 5 لاکھ پر بھی کیوں نہ رکھ لیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ میں پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں ماں کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کو تو ہر وقت ایک انسان کی ضرورت رہتی تھی جو ان کے پاس کھڑا رہے، بار بار پانی دے، کپڑے بدلے اور بھی ہزاروں کام کرتا رہے، جو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے تھے، وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا اور میری ماں ویسے بھی اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بچے بہت شور کرتے تھے، اس کی بیوی بھی میری ماں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ بھائی تو شادی کے بعد اپنی دنیا میں ہی کھو گیا اور مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ اس نے 1 سال ماں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کے مقام پر آ پہنچی تھی، اس لیے وہ ان کو واپس چھوڑ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے ایک دفعہ شادی بھی کی تھی، لیکن میری بیوی 7 سال بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میری ماں نے اسے اتنے طعنے دیے کہ وہ بیچاری سہ نہ سکی۔ اب پتہ نہیں اس کی جان کس طرح گئی، پر ایک دن میں گھر آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بیماری ہے جس کا پتہ بہت دیر سے چلا ہے۔ سب نے یہی سوچا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی، اور میں جانتا تھا کہ اس کو بھی میری ماں نے کوئی بات کی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بیچاری تو دنیا سے چلی گئی۔ یہ ڈاکٹر میری ماں کی بہن کا بیٹا تھا، وہ بھی ماں کی حرکتوں سے واقف تھا پر خاموش رہتا تھا، اور میری ماں اس کو بہت عزت دیتی تھی، اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نام امن تھا۔ میری بیوی بہت تنگ تھی، بہت برے حالات میں اس دنیا سے گئی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اس گھر میں کوئی عورت نہیں لے کر آؤں گا، نہیں تو میری ماں اس کے پیچھے پڑ جائیں گی، اور مرد تو بیچارہ پہلے ہی ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جاتا ہے، اور اوپر سے ماں بھی ایسی خطرناک ہو تو پھر بندہ کیا کرے۔ لیکن پھر یہ بھی مجبوری بن گئی تھی کہ لوگ تو یہاں پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ابھی تک 15 سے 20 عورت یہاں سے بھاگ چکی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا ایک دن ایسے ہی گزر گیا تو میرے ہزاروں کا نقصان ہو گیا۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے بالکل مناسب رشتہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہاں کرو۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، میں کیسے ہاں کر دوں؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ پوری بات کیا ہے، لڑکی کون ہے، کیسی، اور میری ماں کے ساتھ اس کا گزارا ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ لڑکی کی عمر 40 سال ہے اور تم تو 50 سال کے ہونے والے ہو۔ لڑکی کی پہلی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کا پتی اس دنیا میں نہیں رہا، یعنی کہ وہ بیوہ ہے۔ مجھے یہ رشتہ عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ میں واقعی 50 سال کا ہونے والا تھا اور میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو عمر میں مجھ سے آدھی ہو۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔
था। मैं कारोबारी इंसान था और इस मामले में थोड़ा सा वहम भी करता था कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की तो उसका असर मेरे कारोबार पर पड़ेगा और मुझे नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों को हमेशा उनकी मेहनत से ज़्यादा ही पैसे दे दिया करता था। लेकिन यहाँ पर मेरी माँ ना जाने क्या करती थी, जो लोग पैसे देखकर भी नहीं रुकते थे। उसने कहा कि मैंने लड़की को देखा हुआ है, हमारे मोहल्ले में रहती है, उसके साथ मेरी बीवी की बहुत अच्छी दोस्ती है। लड़की बहुत खूबसूरत है और देखने में 40 साल की भी नहीं लगती। मैंने कहा कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो है ना मेरी माँ का। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर के मामले से वाकिफ़ हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ जिसमें तुम्हारा हर तरह से फ़ायदा है। क्योंकि वे लड़की नर्स है, वे तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी, क्योंकि वे पूरा दिन इसी तरह के मरीज़ों से बातचीत करती है, इसलिए उनको आदत होती है। तुम्हारी माँ की उम्र बढ़ती जा रही है और बिस्तर से उठने का उनका कोई इरादा ही नहीं, इसलिए हर वक्त घर में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो ना सिर्फ उनका ख्याल रखे, बल्कि अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो उनका इलाज भी कर सके। तुम एक अमीर बंदे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, वे 40 साल की बेवा है, उसके माँ बाप तो फ़ौरन हाँ कर देंगे। तुम अपनी सुनाओ, क्या सोचते हो? बस हाँ बोलो, फिर हम रिश्ते की बात करते हैं और शादी करवा देते हैं। तुम्हारी माँ को भी राहत हो जाएगी और वह लड़की भी गुजारा करेगी, क्योंकि फिर उसके बाद उसके आगे तो कोई मंजिल है ही नहीं। मुझे मेरे दोस्त की ये बात ठीक लग रही थी और मैं भी सोच रहा था कि शायद शादी कर लूँ तो अच्छा है। इतनी सारी दौलत थी मेरे पास, किसी के काम ही आ जाती। मैंने उससे कहा कि वे रिश्ते की बात करे और वह अपनी बीवी के साथ मिलके रिश्ता लेने चला गया। उन्होंने उसके घर वालों को सारी बात बता दी, बस ये नहीं बताया कि मेरी माँ इतनी गुस्से वाली हैं। उन लोगों ने हाँ कह दिया और 1 हफ्ते बाद ही सादगी से हम दोनों की शादी कर दी गई। उस लड़की का नाम नीलू था। वे देखने में वाकई 40 साल की नहीं लगती थी, बहुत ही अच्छी औरत लग रही थी। हमारी शादी की पहली रात थी। मैं उसके लिए तोहफ़ा लाया और उसे वह तोहफ़ा पेश किया। मेरी माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी माँ एक दफ़ा पुकारती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे आखिरी दफ़ा पुकार रही हैं। मैं उठकर जाने लगा। मैंने कहा कि एक दिन की दुल्हन है, उसको नहीं भेजता हूँ, हो सकता है मेरी माँ पानी मांग रही हो। लेकिन उसने कहा कि आप बैठें, मैं जाती हूँ। वे उठकर चली गई। आधे घंटे गुजर गया, वह बाहर ही नहीं आ रही थी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार में वक्त वैसे भी नहीं गुजरता है। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और वह बाहर ही नहीं आई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, शायद उसने खुद ही लॉक कर लिया होगा, क्योंकि मेरी माँ तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी। मैं अचानक से अजीब तरह की हालत में आ गया कि ये क्या माजरा है। दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। दरवाज़ा भी बंद था। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मेरी बीवी मेरी माँ के कमरे में थी, इसकी खिदमत में मसरूफ़ थी और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई कि बाहर भी नहीं आ रही थी, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी और मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी। यह हालत देखकर मैं अजीब तरह से घबरा गया। मैं कमरे में वापस आ गया और बिस्तर पर बैठ गया और मैं क्या कर सकता था? जो कर सकता था मैंने कर लिया। उसको आवाज़ भी दी, लेकिन उसको खुद भी तो एहसास होना चाहिए था कि उसकी शादी की पहली रात है, तो वह बाहर आ जाती। रात के 2:30 बज गए थे, लेकिन मेरी माँ की आवाज़ आ रही थी। वे मेरी बीवी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी बाहर आ गई और जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वे सुकून से सो रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ, खैरियत तो है? उसने कहा कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से उनका इलाज किया है। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आज तुम्हारी शादी की पहली रात थी, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। उसने कहा कि मैं कौन हूँ, ये मेरा काम भी है और मेरा फ़र्ज़ भी। फिर वे मेरी सास हैं, आपकी माँ हैं, उनका ख्याल तो मैंने ही रखना है। आपने तो ये बात पहले बता भी दी थी। मैं सारा कुछ सोच कर ही तो यहाँ पर आई थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने उससे कहा कि उसका बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वह सो गई। मैं सुबह जल्दी जल्दी घर से चला जाता था और अपना नाश्ता खुद ही बनाने की आदत थी। अब मेरे घर में एक औरत तो आ गई थी, लेकिन वह भी
वे तो बेचारी खुद 3 बजे सोई थी। मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी मैंने अपना काम खुद किया है, एक दिन और कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने नाश्ता बनाया और मैं चला गया। थोड़ी देर के बाद उसका मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि आप चले गए हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं काम पर चला गया हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि कितने बजे वापस आएँगे? शायद वे इसलिए पूछ रही थी ताकि वे खाना बना कर रख सके। मैंने उसे बता दिया कि उसने ऐसे ही किया। वे घर को अच्छे तरीके से संभाल रही थी। मैं घर आया तो मुझे नीलू ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि आज एक औरत आई थी, वे कह रही थी कि मैंने कुछ पैसे रह गए हैं, कुछ 5,000 के करीब है। उसने कहा कि वह यहाँ पर काम करती थी और बता रही थी कि आपकी माँ ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने उसको पैसे दे दिया, आपकी माँ से पहले पूछा था। उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर काम करती थी, लेकिन वे जाते जाते अजीब सी बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकोगी। मैंने कहा कि हाँ, वे यहाँ काम करती थी। तुमने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि अगर तुम बहू हो तो समझो तुम अज़ाब में फंस चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब हो चुकी है। मुझे उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आई, वह ऐसा क्यों कह रही थी। मैं हैरान रह गया और मुझे याद आया वे आखिरी औरत थी जो यहाँ पर काम करती थी और अचानक से भाग गई थी, अपने पैसे ले जाना भूल गई थी। मैंने कहा कि ऐसे लोगों की बातें अजीब होती हैं, जहाँ पर काम से निकाल दिए जाएं वहाँ पर इसी तरह की बातें करते हैं। वे खुद ही ऐसी थी, हमने उसे काम से निकाल दिया। अच्छा किया तुमने उसे पैसे दे दिए। मैंने अपनी बीवी को पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने पास ही रखें। शाम को मैं उसे उसकी माँ के घर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। मैंने कहा कि हमने रिसेप्शन की रस्म भी नहीं की है, कम से कम इसे अपनी माँ के घर तो जाने दे। मैं उसे वहाँ पर रात को रहने के लिए तो नहीं छोड़ रहा। 2 घंटे के बाद हम वापस आ जाएंगे। मेरी माँ ने कहा कि 2 घंटे में अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैं माँ से बहस कर रहा था कि मेरी बीवी कहने लगी कि इसको नहीं जाना है। माँ ठीक कह रही हैं, 2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। मैंने ये बात आराम से की थी, उसने गुस्सा नहीं किया। मुझे लगा, मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर कभी ले जाऊंगा और मुझे माफ़ करना। उसने कहा कि कोई बात नहीं। मेरी बीवी रात को फिर जल्दी सो गई। उसने मुझे खाना दिया। मेरी आदत थी कि मैं खाना खाने के बाद घर पर थोड़ी देर वॉक किया करता था। मेरा घर बहुत बड़ा था, अंदर ही अंदर वॉक कर लेता था। जब वापस आया तो मेरी बीवी सो रही थी। मैं माँ के कमरे में चला गया तो माँ जाग रही थी। मैंने कहा कि बहू पसंद आई है आपको? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। और फिर मैं कुछ और बात करने लगा, क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। और मेरी माँ ने कहा कि मैं भी सोने लगी हूँ, तू भी जाकर सो जा, अपनी बीवी को टाइम दे दे। तो उसको घर में नौकरानी बना कर नहीं लाया। पूरा दिन वे बेचारी काम करती रहती है, उसको वक्त भी दिया कर, उसके कुछ हक भी हैं। मैं खामोश हो गया कि मैं भी तो उसे वक्त देना चाह रहा हूँ। सोचा था पास बैठ के बातें करूँगा, उससे पूछूंगा कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं तो पहले ही सो गई। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरी बीवी पूरा दिन मसरूफ़ रहती थी, उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। एक दिन मेरी माँ की हालत अचानक से बिगड़ गई। हम दोनों अंदर थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप बाहर जाएं, आप अभी बाहर चले जाएं, जल्दी करें, मुझे आपकी माँ का इलाज करना है। मैं हैरान रह गई। उसने मुझे पकड़ा और बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। 2 घंटे इसी तरह गुजर गए, अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और उसके बाद जब मेरी बीवी बाहर आई तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी, जैसे वो अंदर सारे ख़ानदान भर के कपड़े धोती रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, ठीक तो हो? उसने कहा कि पूरा दिन की थकी हुई हूँ। मैंने कहा कि माँ ठीक है? उसने कहा कि हाँ, और वे कमरे में चली गई। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो मेरी माँ सुकून से सो रही थी। और जब मैं वापस कमरे में आया तो मेरी बीवी भी सो चुकी थी। मेरा वही दोस्त जिसने शादी करवाई थी, उसने पूछा कि घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। मैंने कहा कि ठीक चल रहा है, 1 महीना होने वाला है, अभी तक सब कुछ ठीक है। मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के साथ कोई गलत बात नहीं की और मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। मेरे पास बैठी होती है और अगर माँ की आवाज़ आती तो फ़ौरन उठ कर चली जाती। मैंने कहा कि अच्छी औरत है। मेरे दोस्त का कहना था कि मैंने पहले बताया था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने दोस्त को ये कैसे बताता कि मेरी बीवी तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं रखती है। वह तो उसी तरह से पेश आ रही कि जैसे वे इस घर में सिर्फ अपना काम करने के लिए आई हो। उसको एक मरीज़ का ख्याल रखना था,
वैसे वह अभी भी नौकरी पर थी। वे इस घर को अपना घर समझ रही थी, लेकिन मुझे अपना पति नहीं समझ रही थी और मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह पहले ही पूरा दिन मेरे लिए बहुत कुछ किया करती थी। मेरी बीमार माँ का ख्याल रखती थी, मेरे घर को संवारती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। मोहल्ले के लोग आते भी थे तो उससे उल्टी सीधी बातें करते थे। मेरे कुछ रिश्तेदार भी आए थे, उन्होंने भी उसको कहा था कि मेरी माँ बहुत ख़राब औरत है, तुम्हारा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती थी, अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहती थी और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आजकल मैं ये देखकर हैरान था कि मेरी बीवी परेशान रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रही थी। मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, पर वह कहीं जाती भी नहीं थी। फिर मुझे एक दिन क्रेडिट कार्ड का बिल का पता चला तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वह बिल तो लाखों का था। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी सारी शॉपिंग की है, लेकिन मुझे तो उसके पास कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब कि वे पैसे कहाँ लेकर जा रही थी। जाहिर है कि उसने पैसों से कोई ना कोई चीज़ खरीदी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। शायद वह अपने माँ बाप के लिए कुछ ले रही थी। और इस तरह होता है जब लड़कियाँ किसी अमीर आदमी से शादी करती हैं तो उसकी जेब काट के अपने माँ बाप, बहन भाई या फिर दोस्तों के लिए चीज़ खरीदती हैं। मैंने तो कमरे को भी देखा, वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी थी। मैंने सोचा कि पहले खुद चेक कर लेता हूँ, फिर उससे बात करूँगा। फिर मैंने उससे प्यार से कहा कि इतना ज़्यादा खर्चा किस चीज़ में कर दिया। बेशक मेरा काम अच्छा चलता है, लेकिन ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए का बिल है, मैं कैसे अदा करूँगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, चलो तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन वे कोई जवाब ही नहीं दे रही थी और बस रोती चली जा रही थी। मुझे तो शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने उसे क्यों टोक दिया। बेचारी सोचेगी कि दिन रात उसकी माँ का ख्याल रखती हूँ और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली। ये इंसान तो मेरी अदालत लगा कर बैठ गया। मैंने फिर से माफ़ी मांग ली। जब मैं उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था तो उसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ, आप बार बार माफ़ी नहीं मांगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइंदा इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। मैंने इस बात को यहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद उस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे कार्ड से शॉपिंग की गई है। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ के कमरे से झगड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। वे बीवी से झगड़ा कर रही थी। फिर मुझे देखकर खामोश हो गई। मेरी बीवी वहाँ से रोती हुई चली गई। मैंने कहा कि क्या हो गया माँ, अभी तक आपने उसके साथ कोई ऐसा रवैया नहीं रखा था, अब क्या हो गया। उसने कहा कि उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत है, निकालो उसको यहाँ से। मैं खामोश हो गया कि ये कोई नौकरानी नहीं जो उसे यहाँ से निकाल दूँ, ये तो मेरी बीवी थी। लेकिन माँ ये बात करता तो उनसे गुस्सा करना था, इसलिए मैं खामोश हो गया। अब घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया और सारी गलतियाँ मुझे मेरी बीवी की नज़र आ रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन खाने की प्लेट दिखाई तो उसके अंदर गंदगी थी। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ऊपर से उसके खर्च ख़त्म नहीं हो रहे थे, घर भी साफ़ नहीं रख रहता था। शायद वे घर के माहौल से तंग आ गई थी। वे शुरू में ये सब कुछ कर रही थी ताकि उसकी इज्जत बन सके। शुरू में तो बुरी औरत भी सारे ससुराल वालों के साथ अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने लगती है। शायद मेरी बीवी भी यही कर रही थी। मेरे पास तो वह आती भी नहीं थी, मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे पैसे इस्तेमाल कर रही थी जैसे ये सारे उसके अपने पैसे हैं और अब मेरी माँ का भी ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया। मेरी आदत थी कि मैं रोज़ उनके कमरे में जाता था उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने अपनी बाजू पर हाथ रखा और रो रही थी। जब मैंने देखा तो उनकी बाजू पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत मारा हो, और उनका जिस्म इतना कमज़ोर हो गया था कि हल्का सा भी दबाने पर निशान पड़ जाते थे। मैंने कहा ये क्या हो गया, किसने किया आपके साथ। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी ने किया है। मैंने 2 दफ़ा पानी क्या मांग लिया, उसने तो मेरी कलाई पकड़ के ज़ोर से दबाई। यह तो किसी दिन मेरी जान ले लेगी, तू उसको इस घर से निकाल दे, उसको तलाक दे दे।
तुझे कोई और लड़की मिल जाएगी, तेरे पास इतने सारे पैसे हैं। मैंने माँ को कहा कि मैं उससे बात करूँगा। माँ ने कहा कि बात करने का वक्त गुजर चुका है, वह बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है। देख नहीं रहा तू वे क्या कर रही है? मेरे कमरे में आती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है, अंदर ना जाने मुझे कैसी उल्टी सीधी दवाई देती रहती है। मैं तो और भी ज़्यादा बीमार होने लगी हूँ। किसी दिन उसने मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दिया तो मैं क्या करूँगी? मैंने माँ को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वह आपको जान से नहीं मारेगी, आप परेशान ना हो। लेकिन मैं खुद भी परेशान था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मैंने अपनी बीवी से माँ की शिकायतों के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। वे ना तो कुछ बोलती थी और ना ही उसके पास कोई चीज़ होती थी, लेकिन उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जिस तरह माँ बता रही थी उसे हिसाब से तो वे औरत थी ही नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी बीवी और उनके कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बड़े परेशान था। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब दोबारा मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई तो घर में लाइट गई हुई थी। मैं पहले कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन कमरे के अंदर छुप गया। मेरी माँ का मुंह दूसरी तरफ था, उनको पता भी नहीं चला। मेरी बीवी अंदर आई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि कुंडी लगा दे। कब लगाएगी? मेरी बीवी ने कुंडी लगा दी और फिर मेरी बीवी मेरी माँ के कदमों में बैठ गई। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ के साथ क्या करना चाहती है। उसने कहा कि आज मुझे माफ़ कर दे, मैं खुद आपके बेटे से डिवोर्स ले लूँगी, लेकिन इस तरह मुझे उसकी नज़रों में जलील ना करे। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरे हाथ में है। मैं उसे एक इशारा करूँगी, तुझे एक तलाक दे देगा। ये लिस्ट पकड़ और दफ़ा हो जा। सारी चीज़ें लेकर आना और उनका जवाब खुद देना। अगर मेरे बेटे ने किसी और पर शक किया ना, मुझसे पूछ लिया, तो तेरी खैर नहीं है। मेरी बीवी वह कागज़ लेकर वहाँ से बाहर चली गई और रोते रोते ही गई थी। मैं बड़ा हैरान हो चुका था। मैं भी बाहर निकल गया। मैंने उसका पीछा किया। वे शॉपिंग मॉल में चली गई। मैं देखकर हैरान था कि वे इस तरह की चीज़ें ले रही थी जिस तरह की चीज़ों की उसे ज़रूरत नहीं थी। बच्चों के कपड़े, खिलौने, वीडियो गेम और एक ऐसी औरत के साइज़ के कपड़े ले रही थी जो उसका साइज़ बिल्कुल भी नहीं था। उसने मेरे ही कार्ड से बिल बनवाया और वे सामान एक ट्रॉली में डालकर शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया और सामान उससे लेकर चला गया। मैं हैरान रह गया। ये तो वही था जो हमारा फैमिली डॉक्टर था। मैंने उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया। फिर उसने सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को अपनी बातों में लगाया है। वे तुमसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र करती हैं, मुझे अपना बेटा मानती हैं, और ये सारा सामान मेरी फैमिली के लिए तुम्हारी बीवी ख़रीदती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वे तुम्हें कहकर उसे तलाक करवा देगी। इसलिए वे डरती है क्योंकि वे फिर से बेवा या तलाक शुदा नहीं होना चाहती। यानी कि सारी गेम के पीछे वे डॉक्टर था जो मेरी बीमार माँ को इस्तेमाल करके मेरी माँ के हाथों मेरी बीवी को भी इस्तेमाल करवा रहा था। मैंने वे सारा सामान वापस करवाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने उस पर धोखे और 420 का केस करवाया। उसका कुछ नहीं होने वाला था, उसकी ज़मानत हो जानी थी, लेकिन थोड़ी बहुत जहालत तो उसके नसीब में भी आनी चाहिए थी। फिर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और समझाया कि आइंदा अगर आप उसकी बातों में आईं तो आपको इसी के घर पहुँचा दूँगा, बिना पैसों के, और आपको एक पल भी नहीं रखूँगा और बाहर फेंक दूँगा। मेरी माँ भी शर्मिंदा हो गई और मैं अपनी बीवी से भी माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि उसको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी माँ ने उसे यह भी कहा था कि वे मेरे करीब बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद मैंने अपनी माँ के लिए एक औरत को रख लिया और यह औरत बड़ी ही समझदार थी। वे मेरी माँ के सारे काम किया करती थी। अब मैं और मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं हैरान हूँ कि मेरी माँ एक लालची इंसान के साथ मिलकर मेरी बीवी को किस तरह टॉर्चर कर रही थी और मेरी बीवी टॉर्चर हो रही थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे सब कुछ पता चल रहा था। धन्यवाद दोस्तों।